Bismillahirrahmanirrahim. The question number 1 is saying बच्चों silver chloride is an insoluble salt. देखें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसने खुद ही बता दिया that it is insoluble salt and silver nitrate is a soluble salt. और वो कह रहा है कि silver nitrate जो है आपके पास एक soluble salt है. Silver chloride can be prepared by reacting between aqueous silver nitrate and dilute hydrochloric acid. Even reactants भी उसने आपको बता दिए हैं. ठीक है. Now what they are asking for, they are asking describe the preparation of pure dry sample of silver chloride from aqueous silver nitrate and dilute hydrochloric acid. So बच्चों what we need to do? We know that we just need to do yes. ये तो उसने बता दिया ना, खुद ही बता दिया, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है. इनसॉल्युबल सॉल्ट है, उसने बता दिया है, आपने उसने रिएक्टेंट्स भी बता दिए, तो अब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें करना क्या. अब हमें ये पता है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेशन से बनेगा, और प्रेसिपिटेशन के होते हैं 4 मेथड्स, 4 स्टेप्स: मिक्सिंग, फिल्टर and then washing with distilled water, and after this dry between the filter paper, right? So you can say that mix both the things. आपके पास जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको HCl से मिक्स करो, ठीक है ना. फिर क्या करो, फिल्ट्रेशन ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट्स, उसको आप फिल्टर कर लो. उसके बाद वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर. आपने डिस्टिल्ड वाटर से इसको क्या करना है बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है. किसको वॉश करना है? AgCl के प्रेसिपिटेट्स को. Then you need to dry the precipitates of AgCl between the filter paper, right बच्चों. ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपने लिखना ही लिखना है. अगर आप ये 4 स्टेप्स लिखोगे तो you got 3 marks of this. All right, every one of you. जी राइट सर. लिखना आपने वैसे ही है जैसे मैंने आपको फ्रेम करवाया है, ठीक है ना. जैसे मैंने आपको फ्रेम दिया है उसी हिसाब से लिखना है. आपने लिखना है take AgNO3 in the beaker, then add HCl into it and the white precipitates start forming. And white precipitate लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें. आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं precipitates start forming and we need to filter out the precipitates and wash the precipitates with distilled water and then dry them between the filter paper, right बच्चों? Right sir. जी राइट सर. And we need to write ionic equation for this. So we know that which precipitates we form. हमने बनाया क्या है, हमने AgCl बनाया है. हमने AgCl बनाया है तो डेफिनेटली एक सॉल्ट ऐसा लिया होगा जिसके अंदर सिल्वर के आयंस होंगे और एक सॉल्ट ऐसा लिया होगा जिसके अंदर क्लोराइड के आयंस होंगे, और दोनों ही सॉल्युबल होंगे. तो दोनों ही सॉल्युबल होंगे तो aqueous and this is precipitate, so it is insoluble in water. तो ये देखें, एक नंबर आपको करेक्ट इक्वेशन लिखने का मिलेगा, एक नंबर आपको करेक्ट स्टेट सिंबल्स लिखने का मिलेगा. All right बच्चों? Yes sir. Yes, right. Then after this it is saying silver chloride decomposes in the presence of light to make silver and chlorine. उसने खुद ही बता दिया. अब आप ये नहीं बोले सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हमसे क्यों पूछ रहा है. तो वो पूछ थोड़ी रहा है, तो आपको फ्री के नंबर दे रहा है. वो आपको ऑलरेडी बता रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे तो सिल्वर और क्लोरीन बनेगा. Now they are asking what is the name of the type of reaction that required light. ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है? तो you can say that it is फोटोसिंथेसिस. photochemical reaction. Photosynthesis itself a photochemical reaction. Yes sir. Now they are asking for the equation for the decomposition of this. तो सिल्वर क्लोराइड है, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो तो क्या बन रहा है, सिल्वर और क्लोरीन. As chlorine is from group number 7, so it is always diatomic in nature. So for this we need to write 2 over here and 2 over here. All right बच्चों? Right sir. Yes sir. Any problem? No sir. इसके बाद वाला भी अगर आपको याद हो तो ये हमने किया हुआ है. यहाँ पर barium chloride is a soluble salt and the barium sulfate is an insoluble salt. Barium sulfate can be prepared by reaction between aqueous barium chloride and dilute sulfuric acid. This is the same thing. We just need to mix, filter, wash and dry. ये 4 steps हमें करने हैं इसमें भी, क्योंकि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं. Now here we have the next question, question number 3. तो जल्दी से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है बच्चों. स्टार्ट कीजिए. बहुत जरा देखिए इधर सवाल क्या लिखा हुआ है. सवाल आपके पास लिखा हुआ है that you are using acids neutralizing insoluble bases. क्या लिखा हुआ है आपके पास? Insoluble bases, and acids are always soluble. So if you have one soluble and one you have insoluble, so which method we are going to use बच्चों? It is Mixing. Mixing. Yes sir. right. So magnesium chloride is a soluble salt.
that can be prepared from an insoluble base. वो बार वो आपसे insoluble की बात कर रहा है. Name the acid. कौन सा acid use करेंगे? Because you are forming chloride salt. Hydrochloride. Salt के लिए hydrochloric acid plus because you Magnesium want oxide. insoluble base, so it should be magnesium oxide. Very good. ये दो हम यूज करेंगे. नाम लिख लीजिएगा इसका कि जो नाम बोल रहा है तो आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखिएगा. मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप नाम लिखिएगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है ना. नाम का अगर उसने बोला है तो आप नाम लिखें. इट सेव योर मार्क्स. ठीक है ना. Then describe the experimental method used to prepare pure crystals of magnesium chloride. 4 marks का है ये. देखिए 4 marks गवाने नहीं है हमने. It's very important for us. ये बहुत काम के हो सकते हैं. तो आप क्या लिखेंगे? टेक. सबसे पहले हम क्या लेते हैं भाई? टेक dilute hydrochloric acid in the beaker. हम पहले beaker लेंगे, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे. Then add powder excess magnesium oxide in the beaker. Right? फिर beaker में हम ये ऐड कर देंगे. क्या करेंगे हम उसके बाद? हम करेंगे stir the mixture. हम मिक्सचर को stir करेंगे. स्टर करने के बाद क्या करेंगे बच्चों? हम फिल्टर द इनसॉल्युबल मैग्नीशियम ऑक्साइड. फिल्टर द इनसॉल्युबल मैग्नीशियम ऑक्साइड. देन हीट द फिल्ट्रेट. क्या करेंगे हम? हीट द फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट जो है वो हमारा सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि हमें चाहिए. हीट द फिल्ट्रेट टिल सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट तक आप इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे. एंड देन leave it to cool and crystallize. Leave it to cool and crystallize. जब वो crystals बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उनको फिर wash करेंगे. So you can say that wash with cold water. Wash the crystals with cold water. आप cold water से भी कर सकते हैं या organic solvent से भी कर सकते हैं. मैं आपको prefer करूंगा कि आप organic solvent use करें क्योंकि cold water लिखते वक्त अगर आप cold लिखना भूल गए तो आपका mark खा जाएगा. So wash the crystals with organic solvent and then organic solvent से wash करने के बाद क्या करेंगे? Put the crystals between the filter paper. Put the crystals between filter paper. All right बच्चों, is that right or not? सर Yes, मैंने yes, लिखा था कि बिल्कुल सही है. फिल्टर वो हमने जो था वो फिल्टर कर लिया था एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पीछे बच गया था हमारे पास. उसके बाद फिल्ट्रेट को कर लिया था. वो सही है. Heat the filtrate till saturation point. ठीक. सर B ए part में कह रहा है aqueous barium chloride and aqueous potassium sulfate can be used to prepare barium sulfate. दोबारा से ये barium sulfate की बात करें तो भाई barium sulfate आप बना रहे हो तो barium sulfate ये बन गया हमारे पास. ये बनेगा कैसे? barium ions की वजह से और sulfate ion की वजह से. That's it. ये हम पहले भी कर चुके हैं और ये हमने अभी भी आपको कर दिखा दी है. और अगर आपको नहीं आता इस तरह तो आप वही मेथड करें जो मैंने आपको बताया है कि बैरियम क्लोराइड में बैरियम आयन है और क्लोराइड आयन मौजूद है और जबकि पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम आयन मौजूद है और सल्फेट आयन मौजूद है. इनकी वजह से आपके पास क्या बन रहा है? बैरियम सल्फेट क्योंकि इनसॉल्युबल है. वी कैन नॉट ब्रेक इट आउट इन आयंस. और क्या बन रहा है आपके पास? पोटेशियम क्लोराइड बनेगा. तो पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयन सॉल्युबल है तो इसको इस तरह लिख देंगे. स्पेक्टेटर आयंस को आप काट दीजिए तो आपके पास जो बचेगा वो बची आयोनिक इक्वेशन. राइट बच्चों? सर Yes, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल दे सकते हैं? यार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पास कुछ भी हो सकता है जो पोलर ना हो यानी कि इसके अंदर चार्जेस ना हो. अब जैसे फॉर सपोज अगर कोई लड़की हाथ में अपने नेल पेंट लगाती है तो वो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करती है? थिनर यूज करती है. तो थिनर इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि नेल पेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है लेकिन पानी नहीं कर सकता नेल पेंट को अपने अंदर डिसॉल्व. राइट? जी सर. तो इस वजह से हम ऐसा यूज करेंगे जो वॉश तो कर दे लेकिन डिसॉल्व ना करे. सही है? राइट सर. ठीक. ऑलराइट बच्चों. जी सर. राइट. चलें जरा तो फिर एक और ये एक क्वेश्चन आपके पास मौजूद है यहाँ पर और वो क्या कह रहे हैं आपसे? जस्ट लुक इट ओवर हियर. A titration method can be used to make soluble salts. Student does an experiment to prepare pure sample of sodium chloride. Part of the method is shown in the diagram. You can see this. The step number 1 is he's taking any liquid from measuring cylinder. You can see this. This is measuring cylinder. इसको हम क्या बोलते हैं? This is measuring cylinder. And you need to keep remember this is a little bit
you can say that inaccurate. 0.5 centimeter cube plus minus can be inaccurate, right? And this is what? This is beaker, right? This is beaker, but you can see this. What is inside the beaker? उसके मतलब बीकर के अंदर क्या चीज हो सकती है? क्योंकि आप टाइट्रेशन मेथड कर रहे हो तो आप सोडियम क्लोराइड बना रहे हो, सोडियम क्लोराइड यानी कि क्लोराइड आपको चाहिए। सो इसके अंदर क्या हो सकता है? आपके पास HCl हो सकता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूरेट। ये क्या चीज है आपके पास? ये आपके पास ब्यूरेट है, ठीक है। और ये सब कुछ उसने किया है, ठीक है ना। अब देखें वो क्या कह रहा है आपसे ए पार्ट में। इन स्टेप नंबर 1 द स्टूडेंट यूजेस अ मेजरिंग सिलेंडर टू ऐड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो उसने बता दिया है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ ले रहा है, वरना दोनों जगह पे कुछ भी इस्तेमाल हो सकता था। मतलब बीकर के अंदर HCl की जगह NaOH भी हो सकता था अगर वो ना बताता तो, ठीक है ना। अभी उसने बता दिया इसलिए उसने HCl। So in step number 1 the student uses a measuring cylinder to add 25 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide to the conical flask. State how the accuracy of the experiment could be improved in step number 1. हम इसको कैसे improve कर सकते हैं? We know that measuring cylinder is a little bit inaccurate, so we can use pipette or even we can use burette for more accuracy, right? So you can say that pipette, you can say that pipette or burette can be used, right? Pipette और burette दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। Can be used instead of measuring cylinder. Measuring cylinder की जगह पर आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज करेंगे, so आपका एक्सपेरिमेंट बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है। Now in the second part they are saying describe what the student does in step 2 of the method. Step 2 में वो कर क्या रहा है? आपको अगर देखिए फनल के जरिए वो आपके उसके अंदर ब्यूरेट के अंदर एसिड भर रहा है, ठीक है ना। और वो ये बताना चाह रहा है आपसे कि वो एक्चुअली रेडी कर रहा है एक्सपेरिमेंट। तो वी नो दैट ना टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, पहले हम पिपेट आउट करते हैं, फिर जो है ना उसको कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? हम करते हैं फिल द ब्यूरेट विद HCl या व्हाटएवर जो भी हमारे पास होता है उससे हम जो है ब्यूरेट को फिल करते हैं। तो ही इज एक्चुअली फिलिंग द ब्यूरेट एंड मेकिंग द इनिशियल रीडिंग। वो इनिशियल रीडिंग लेना चाह रहा है, वो 0 तक इसको फिल करेगा और फिर वो स्टार्ट करेगा कि भाई मेरे पास इनिशियली 0 रीडिंग थी, मैं 0 से फिर कितना वॉल्यूम यूज हुआ। तो 0 रीडिंग करना चाह रहा है, वो फिल करना चाह रहा है उसको कंप्लीट, और उसका एक मेजर तो एक फिर उसके बाद वो क्या करेगा? वॉल्यूम मेजर करेगा। यू कैन से दैट आपको मार्क मिलेगा अपैरेटस ए का नाम लेने का और फिर सॉल्यूशन बी का नाम लेने का। तो आप देख सकते हैं कि apparatus A क्या है आपके पास? ब्यूरेट, और सॉल्यूशन B आपके पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So you can say that solution B is hydrochloric acid and the student is pouring the HCl in the apparatus A. In the apparatus A, which is burette. So he can take the initial reading of burette, initial reading of volume of HCl in burette. Right, बच्चों? राइट सर। ये हम 0 पॉइंट तक क्या कह रहे बेटे? सर ये हम 0 पॉइंट तक फिल करेंगे ना? मर्जी है आपकी, अगर आप इसको 0 पॉइंट तक फिल करना चाहते हैं आप 0 पॉइंट तक कर लें, आप 10 तक स्टार्ट कर लें, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर आपने 10 तक फिल किया है और फिर आपने टाइट्रेशन के बाद चेक किया है कि भाई ये 17.3 तक आ गया है, तो डिफरेंस तो अभी भी 7.3 ही है ना। फॉर सपोज अगर आपने इसको 0 तक फिल किया होता और ये 7.3 तक गया होता तब भी ये 7.3 था। मर्जी है आपकी, आपको डिफरेंस लेना होता है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 0 तक फिल करें। 10 तक भी फिल करेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हम ऑफिशियली 0 तक फिल करते हैं ताकि हमारे पास रीडिंग बैक टू बैक आए, स्ट्रेट आए, मतलब हमें माइनस ना करना पड़े, डायरेक्ट 7.3 आ जाए, राइट? यस सर। यस ठीक है। Then here we have the next part, वो कह रहा है identify what is added to the flask in step 3 before starting the titration. टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले इस फ्लास्क में few drops किस चीज के डाले जाएंगे? मिथाइल ऑरेंज जरूरी इंडिकेटर नहीं के जरूरी नहीं है मिथाइल ऑरेंज।
आप यहाँ इंडिकेटर लिख दें, कोई सा भी हो इंडिकेटर होना चाहिए, राइट? सर अगर हम इसमें ठीक। नाम स्पेसिफाई करके लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये आपकी एक मतलब आप कह लें कि ये आपकी एबिलिटी है कि आप एक कदम आगे का सोच रहे हैं, ठीक है? ओके सर। Then in step number 4, the student adds the solution B in the aqueous sodium hydroxide. The quantity flask until the end point is reached. The student records the volume of solution B added. वो check कर रहे हैं कि solution of B उसने कितना add किया, उसने record कर लिया. State how the student know when the end point is reached. उसको कैसे पता चलेगा कि end point reach हो गया है? तो आप क्या कह सकते हैं? सर चेंज इन इंडिकेटर में Color चेंज आएगा जब। Yes, color change would be seen. Color change would be seen. आपको color change seen होता हुआ नजर आएगा, change होता हुआ आपको color change होता हुआ नजर आएगा, ठीक है भाई? जी राइट सर। Yes, sir, right. Then in the next part is saying the rest of the method involve adding the recorded volume of solution B to another 25 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide. The substance added in step 3 of the first titration is not added. State why this substance is not added. We know that कि जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है इंडिकेटर के जरिए, फिर हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं विदाउट यूजिंग इंडिकेटर। क्यों करते हैं भाई? हम इंडिकेटर दोबारा यूज क्यों नहीं करते? हम सेम वॉल्यूम ऐड करते हैं दोनों चीजों का और इंडिकेटर यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते इंडिकेटर यूज? सर ताकि इम्प्योरिटी ना रहे। यस, Contaminate ना। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, राइट? हम चाह रहे हैं किसी तरह की कंटामिनेशन ना आए, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ इंडिकेटर। वी आर अवॉइडिंग दिस, राइट बच्चों? यस सर। Because we want pure dry crystals of salt. That is why we are doing this. Then after that, describe how the student obtained pure crystals of sodium chloride from the solution in the conical flask. अब जो सॉल्यूशन आपके पास आ गया सोडियम क्लोराइड का, उसमें से वो सोडियम क्लोराइड कैसे निकालेगा बच्चों? क्या करेगा वो? Sir, heat, Saturation heating, cooling, point. washing and drying. Yes, heat the solution till सैचुरेशन पॉइंट। saturation point. आपको पता है ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अगर ये पॉइंट भी आप लिख दोगे ना तो भी आपको इसमें 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। आई बात समझ में? Sir, saturated point का क्या मतलब था? यानी कि हीट लिखने का 1 नंबर मिलेगा और सैचुरेशन पॉइंट लिखने का दूसरा नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे इस लाइन के आपको खाली। हीट द सॉल्यूशन टिल सैचुरेशन पॉइंट देन लीव इट टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, लीव इट टू कूल एंड क्रिस्टलाइज। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? Dry between filter. जी Wash सर। the crystals, Wash wash करिए। crystals with organic solvent, soluble solvent. Then leave it to सर ड्राई। yes. Put the crystals on filter paper. Put the crystals on filter paper. सर रीजन तो नहीं बतानी होती मॉइस्चर खत्म करने के लिए? नहीं उसकी जरूरत नहीं, उसने पूछा ही नहीं रीजन। उसने देखो यहाँ रीजन पूछा है उसने, तो मैंने बता दिया। और इस पूरे सवाल को सॉल्व कराने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आपको ये रीजन पता चले जो हमने यहाँ लिखा है ना। हम बच्चों Yes, sir. जो है रीजन को गलत लिख देते हैं, तो रीजन आपको पता होना चाहिए व्हाई वी आर अवॉइडिंग इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेटअप कि भाई हम क्यों उसमें से इंडिकेटर नहीं हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं उसको? क्योंकि हमें कलर चेंज पता चल गया है, हमें वॉल्यूम का आइडेंटिफाई हो गया। अब हम नहीं चाहते कि हमारे प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर कंटामिनेशन ऑफ इंडिकेटर आए, तो इसलिए हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको हटा देते हैं, उसको हटाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं दोबारा से। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? सर अगर फिल्टर पेपर की जगह हम लोग ओवन में ड्राई करें तो यू कैन सी दिस कि यार ये वाला पार्ट भी सॉल्ट्स का ही है, तो मैं आपको करा देता हूँ। सॉल्ट्स फॉर्मेशन के बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स आता है। फॉर सपोज आपके पास ये कह रहा है सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कंटेन 2 डिफरेंट कैटाइंस एंड 1 एनाइन। वो कह रहा है आपके पास 2 कैटाइन है अलग अलग, जबकि ये कैटाइन 1 है और ये कैटाइन 2 है, और जबकि एनाइन आपके पास सेम है। तो देखो कैटाइन और एनाइन मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो दिस इज सॉल्ट 1, दिस इज सॉल्ट 2, ठीक है ना? तो अब वो आपको अननोन सॉल्ट दे रहा है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इनमें से कौन सा वाला सॉल्ट आपके पास क्या है, ठीक है? So a solution contain 2 different cations and 1 anion. Complete the table, name any gas form and describe the test used to identify these gases, ठीक है? अब आप वो आपसे कह रहा है कि आप पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म, अब आपके पास पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। इसकी कंक्लूजन आप क्या लिखोगे बच्चों? सर वो क्रोमियम 3। नहीं सॉरी अभी नथिंग आयरन। अभी कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म ना।
Yes, sir. You can say that iron 2 plus or chromium 3 plus can be present. सर Right? ग्रे बॉक्स में लिखना होता है? एक बात बता रहा हूँ आपको, ऐसे तो नहीं लिखना अच्छा, अभी ठीक तो, है। अभी तो यहाँ पर मार्क्स नहीं है इसके। देखो इसके तो 2 मार्क्स हैं, इसके 4 मार्क्स हैं, यहाँ पर मार्क्स नहीं है, इसका मतलब इसका फायदा ही नहीं है लिखने का, वो लिखना ही नहीं है। ग्रे बॉक्स का मतलब होता है यू डोंट नीड टू राइट ओवर हियर, राइट? जी सर, राइट राइट। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ना होता तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये लिख सकते थे, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद आपके पास अब जो सवाल शुरू हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टू द सेम बॉइलिंग ट्यूब कंटिन्यू एडिंग aqueous sodium hydroxide until in excess a green precipitates dissolve to form a green solution। यानी कि जो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बने वो डिसॉल्व हो गए, इसका मतलब ये क्रोमियम हो गया। आयरन के 2 प्लस हो चाहे 3 प्लस हो, दोनों ही इनसॉल्युबल रहते हैं एक्सेस में भी, तो वो तो नहीं हो सकता है। ये क्या है आपके पास, ये क्रोमियम आयन कंफर्म हो गया। कौन सा आयन कंफर्म हो गया? ये क्रोमियम। उसके बाद वो कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड अंटिल इन एक्सेस, हाइड्रोक्साइड आपने डाला अंटिल एक्सेस और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बचे हुए हैं अभी भी, इसका मतलब ये कौन सा हो गया भाई? कैल्शियम। सही है। उसके बाद वो आपसे बोल रहा है कि भाई आप एनाइन का टेस्ट लिख के दिखाएं, सो आप लिख सकते हैं। और नाइट्रेट का टेस्ट आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? ऐड aqueous sodium hydroxide add aqueous sodium hydroxide plus aluminum foil and हीट जेंटली। तमीज से जरा heat करेंगे इसको। शरीफ बच्चा है, इसको तमीज से हीट करेंगे। अब तो यहाँ क्या होगा आपके पास? ammonia gas release. अमोनिया गैस। Yes. Effervescence of pungent smell. आप यहाँ लिखते a gas releases that turns ब्लू लिटमस, Red नहीं रेड लिटमस ब्लू। litmus paper blue। ब्लू। ठीक है, नहीं इससे कंफर्म हो रहा है कि ये अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस। ठीक है भाई, राइट? राइट सर। उसके बाद नीचे वाला जो सवाल है आप देखें, उस सवाल में वो क्या कह रहा है? अमोनियम सल्फाइड यानी कि NH4 twice SO3 in a water soluble compound aqueous ammonium sulfide is slowly oxidized by oxygen in air. This means aqueous ammonium sulfide will also contain some sulfate ions as well. Describe a series of tests and the observation to show the presence of ammonium ions, sulfide ions and sulfate ions in this solution। 6 नंबर का सवाल देखें जरा, कितना आसान सवाल है। क्या करना चाहिए हमें? बस आइडेंटिफाई। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने सिंपल टेस्ट लिखना है ना। आपने अमोनियम आयन का टेस्ट लिखना है, ठीक है ना? आपने सल्फाइड आयन का टेस्ट लिखना है और आपने सल्फेट आयन का टेस्ट लिखना है, ठीक है ना? मैं ये टेस्ट आपको लिखवा देता हूँ। अमोनियम आयन का टेस्ट क्या होता है बच्चों? व्हेनेवर यू हैव अमोनियम आयन, क्या करना चाहिए हमें? तो वही इसका था। अमोनियम आयन के अंदर हम क्या डालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या होता है हमारे पास? Gently. अमोनिया हाँ, प्रोड्यूस होती है सर। बिल्कुल, हीट जेंटली भी आप कर सकते हैं। और क्या होगा आपके पास? गैस रिलीज व्हिच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, राइट बच्चों? राइट सर। और सल्फाइड का टेस्ट क्या होता है? एट अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। क्योंकि SO3 SO4 किसी भी वक्त बना सकती है, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइज हो सकती है, ऑक्सीजन गेन कर सकती है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुई। तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसके अंदर एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट डालेंगे तो ये कलर चेंज करेगी फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, राइट? और सल्फेट का टेस्ट हमें पता है, हम इसको एसिडिफाइड करेंगे विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड बैरियम क्लोराइड या बैरियम नाइट्रेट, दोनों में से कोई सा भी सॉल्युबल सॉल्ट डाल दें बैरियम का। एंड व्हाट यू वुड ऑब्जर्व? You would observe white precipitates which confirms the presence of sulfate ion। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब जितने भी ATP के सवाल आपके पास आएंगे बच्चों, आपके ATP का जो पेपर आपके पास आएगा, फाइनल पेपर 4 हो चाहे पेपर 6 हो, वो आपके पास उसमें डेटा बुकलेट आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट बच्चों? जी सर, राइट। ये वाले जो टेस्ट आपके मैंने 3 नहीं लिखे हैं, ये तीनों ऑलरेडी पीछे लिखे हुए होंगे आपकी डेटा बुकलेट में, वहां से देखकर हम लिख सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम? सवाल है